So good morning students. Today we will study the chapter of lipids. We'll first start with the definition. So definition is lipids are esters of fatty acids which are capable of reacting with fatty acids and they form the esters. So basically when glycerol or any alcohol reacts with fatty acid, they form esters. So basic definition of lipids is esters of fatty acid with alcohol. So here our alcohol is glycerol and any higher molecular weight fatty acid. So when alcohol and fatty acid react together, they form esters. So this is the main definition of lipids. Then coming to the role of lipids. First role of lipids is they act as shock absorber or insulator. So because they are present in our body in the form of adipose tissue, they act as insulator of heat. They can absorb good amount of shock when you fall down, or they can absorb good amount of heat. Then when they are stored in adipose tissue, they can provide you energy when needed during the fasting stage. Third main function of lipids is they help in blood clotting. And next is carrier for fat soluble proteins. Carrier means they act as solvent or they carry the fat soluble vitamins along with you in the form of blood. Blood में क्या जाता है? Fat soluble vitamins. And next is as hormones. Hormones में आपके जितने भी male and female hormones हैं, progesterone, estrogen, testosterone, they all hormones are having the basic structure of lipids. And similarly your vitamins में विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसका जो मेन स्ट्रक्चर है that is steroidal structure. So these are the main role of lipids in our body, and I hope so definition is again clear with you. The simplest definition is the esters of fatty acids with alcohol. Thank you so much. So good afternoon students. Today we will study the classification of lipids. So lipids क्या होते हैं? They are esters of fatty acids with alcohol. ठीक है? So whenever any alcohol reacts with any fatty acid, they form the esters. So these higher molecular weight esters are called as lipids. So lipids की classification में हम देखेंगे तीन तरह के होते हैं: simple lipids, compound lipids and derived lipids. Simple lipids आपके दो तरह के हैं: fats and oils and waxes. Fats and oils. Fats आपने देखा जैसे आपके घर में देसी घी होता है, बटर होता है, वो फैट्स में आता है. एंड ऑयल्स जैसे कि आपके रिफाइंड ऑयल. तो इसका एग्जांपल है वूल फैट एंड ऑयल्स जैसे जो आपकी फार्मेसी में अरैकिस ऑयल जो आप यूज करते हो, जितने भी लिक्विड है वो सारे ऑयल्स होंगे. सो मेनली फैट्स एंड ऑयल्स में डिफरेंसेस क्या हैं? फैट्स हमेशा सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर, ऑयल्स हमेशा लिक्विड होंगे. फैट्स में हायर सैचुरेशन होगी, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, एंड ऑयल्स में डबल बॉन्ड होगा. ठीक है? दे विल बी हाईली अनसैचुरेटेड. फैट्स का क्योंकि दे आर हाईली सैचुरेटेड तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. बटर और घी को देखा है ना आपने, पिघलाने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है आपको, रादर देन ऑयल तो होता है लिक्विड होता है, वो जल्दी से हीटअप हो जाता है. ठीक है? मेन डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स इज fats have less iodine number and oils have more high iodine number.
तो पहले आप आयोडीन नंबर समझ लो, आयोडीन नंबर क्या होता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत आपको ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आयोडीन नंबर। सो आयोडीन नंबर क्या होता है, जब कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आयोडीन को एब्जॉर्ब करता है, so the amount of iodine in grams absorbed by 100 gram of fat is called as iodine number. So जब कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड कितनी आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसके डबल बॉन्ड चले जाएंगे और डबल बॉन्ड की जगह पे आयोडीन लग जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे आयोडीन रिप्लेस कर लेगा। तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड कितना 100 ग्राम ऑफ फैट जो है कितना आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज आयोडीन नंबर। आयोडीन आपको क्या शो करेगा, आयोडीन नंबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसमें जितनी ज्यादा अनसैचुरेशन होगी, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, उतनी ही उसका आयोडीन नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, हायर द डबल बॉन्ड्स इन ए कंपाउंड, higher will be the iodine number and higher will be the unsaturation. ठीक, then coming to the waxes, waxes आपने देखी है, bees wax जो है आपकी लिपस्टिक्स में जो एक वैक्सी सा टच आता है, that is due to the bees wax। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। और बीज वैक्स के कंपोनेंट क्या है, दे आर एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स। तो ये दो टाइप के सिंपल लिपिड्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड्स इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड जहां पे भी वर्ड आ जाएगा, जैसे आपने कंपाउंड प्रोटीन्स देखा, ऐसे ही कंपाउंड लिपिड्स में दो चीजों को मिला के जो चीज बनी है। सिंपल मीन्स एक एंड कंपाउंड मीन्स दो चीजों को ज्वाइन करके जो चीज बनी है। इसका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो नाम से शो हो रहा है, जो लिपिड है वो किस चीज से मिला के बना है, फॉस्फोरस ग्रुप उसमें ऐड किया हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरस ग्रुप। सो द नेम इज फॉस्फोलिपिड्स। सेकेंड इज ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी ज्वाइन करी है लिपिड्स के साथ। थर्ड इज अमीनोलिपिड्स, अमीनो ग्रुप एंड लिपिड मॉइटी। फोर्थ इज लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। थर्ड टाइप ऑफ लिपिड्स इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड है तो मतलब या सिंपल या कंपाउंड लिपिड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बने हुए हैं ये डिराइव्ड लिपिड्स। इसमें हमारे पास 5 टाइप्स हैं। स्टीरोल्स, जिसमें कि आपने पहला एग्जांपल किया कोलेस्ट्रॉल। देन ग्लिसरॉल अभी आपने पढ़ा, 3 कार्बन अल्कोहल है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमारे पास 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होगा और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड भी 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो में एक डबल बॉन्ड होगा, पॉली में बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मूफा, मींस मोनो अनसैचुरेटेड, एंड पूफा मींस पॉली अनसैचुरेटेड। बहुत आता है ये एग्जाम्स में क्वेश्चन, व्हाट इज मूफा एंड पूफा। So mono means एक डबल बॉन्ड एंड पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड में बहुत सारे डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में होंगे, दैट विल बी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पूफा। देन स्टेरॉइड्स आपने देखा है, जितने भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है सबका स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर है। एंड हार्मोन्स में इवन तुम्हारे विटामिन है उनका भी स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका विटामिन डी है वो भी स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर है। देन हार्मोन्स में आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो सारे उनका भी स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर है एंड दे कम अंडर डिराइव्ड लिपिड्स। थैंक यू सो मच।